Very good morning, students. Again, I am here, your Sachin sir, with the next accounting topic we are going to discuss today. Friends, we have discussed various topics regarding accounting. Okay, that may be concepts, conventions, that may be expenditures or classification of expenditures, whatever. Today, I want to ask you a simple general question. Very simple question. Okay, you try to recall in your mind until I answer you. The question is, entire business transactions, or if you call those business transactions as the economic activities, means the activities which are made to earn profit or involve monetary value. Because you know, any activity or transaction that does not involve monetary value should not be recorded in the book of account by virtue of money measurement concept. So, and my question is, all the business transactions or all the business economic activities can be classified in or can be described in just 2 words. How many words? 2 words. I know you must be thinking that how it is possible. How come it can be happen? How come it can be true that only 2 words can explain or determine or describe the entire business transaction? Students, it is possible. Okay, just recall in your mind until I say the answer. What did I say? Every business transaction or total business transaction, there may be numerous transactions, uncountable transactions, because we know that there are different type of businesses, different type of scales of businesses, different type of enterprises dealing with the different nature of goods. Okay, so we take as a uncountable or a numerous kinds of business enterprises having again uncountable and numerous business transactions taking on a daily basis. My question is, explain all those economic activities or all those business transactions in just 2 words. Okay, very general and very casual terms are that. Okay, means it is not terms like related to accounting. The terms you must have heard numerous times in your life. Okay, so what was the question? Question was, all the business transactions, all the business economic activities can be explained or described in just 2 words. What are those 2 words? I am writing here. Try to reconcile that whether you have thought correct or not. Those 2 words are receipts and payments. What those 2 words are? Receipts and payments. Now the thing is, we have to check or we have to recross whether we have found the answer correct or not. So the answer is receipt and payment. Okay, so now we have to see that whether this answer is correct or not. See, what does the business economic activity speak about, or what are the transactions of the business? Either you are paying something or you are receiving something. Either you are paying expenses, either you are receiving income. Either you are having profit, that means the excess of income, or you are having loss, that is the excess of expenses. Whether you are buying the assets or you are selling the assets. So loss, expense, profit, assets, liability, these things are the keywords or the perfect terms of the business enterprise. What are those terms of the business enterprise that within which the entire business enterprise rotates? What are those 6 terms? Profit, loss, expense, income, asset, liability. Those are the 6 terms. And either you buy or you make expenses or you make payment or you make receipts. That means all those terms or all those business transactions can be either paid for a particular period of time or maybe received within a particular period of time. Okay, so that is why we can classify the entire business transactions or the all economic activities of every business enterprise in just 2 words. What are those 2 words? Receipt and payment. Now tell me, is these 2 words very bit difficult? Is these 2 words you haven't heard yet? ओके, तो इसका मतलब है कि ये 2 ऐसे वर्ड्स है जिसको आपने पहले से सुना हुआ है, ये 2 ऐसे वर्ड्स है जिसको आप पहले से जानते हो, तो ये कुछ नया नहीं है. आपको याद होगा मैंने एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर भी ऐसे आपको जनरली बताया था, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं. ये अकाउंटिंग है, इतना टफ होगा, ऐसे वर्ड्स होंगे, वैसे वर्ड्स होंगे, हम कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे? नॉट लाइक दैट. ओके, सो दीज आर वेरी जनरल एंड वेरी सिंपल टर्म्स दैट यू हैव हर्ड अर्लियर आल्सो. अब बात ये है कि इन दोनों टर्म्स का अकाउंटिंग से क्या संबंध है, मीन्स हाउ दिस टू टर्म्स आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस और अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हाउ इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस
business enterprise. Now we discuss in detail what does these two terms speak about. Okay, so as you know, payment receipts means when you receive something. When you receive something, and again on the basis you may receive more or less. Correct or not? First we are talking about receipt. So रिसिप्ट क्या होती है? जो आपको कुछ मिलता है. मैं बिजनेस के आधार पे बोल रहा हूं, तो आप अपने डेली लाइफ को इसके साथ कंफ्यूज मत करना. आप अपने आप को एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड वी आर स्टडीइंग और डिस्कसिंग द कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ओके, तो रिसिप्ट क्या होता है? जो हमें एक समय में मिलते हैं. अब ये जो मिलता है ये कितने तरह का होता है? या तो कम मिलता होगा या तो ज्यादा मिलता होगा, है कि नहीं? इधर वी आर रिसीविंग लेस और वी आर रिसीविंग मोर. तो रिसिप्ट के कितने टाइप हो गए इस बेसिस पे कि आपको मिलता कितना है? द क्वांटिटी ऑफ रिसिप्ट. ओके, द बेसिस इज द क्वांटिटी ऑफ रिसिप्ट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स आर देयर? टू टाइप्स ऑफ रिसिप्ट. either we are receiving less or we are receiving more. So can I write the receipts are of two types? So in a business enterprise, receipts are of two types. That is capital receipt. Sorry, I don't want to tell you the names. First we will discuss generally. So receipts are of two types. That is either larger receipt or smaller receipt. Either larger receipt or smaller receipt. Now we will discuss what this larger receipt is and what this smaller receipt is. Okay, so before going to there, now again we come to the payments. Okay, तो पेमेंट का मतलब क्या होता है? खर्चा ही होता है. अब आपके दिमाग में तो ये आता होगा ना कि पेमेंट मतलब कोई खर्चा होता है, पर मैंने आपको एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर की क्लास में बताया था कि हर चीज खर्चा नहीं होता है. कुछ ऐसे भी बड़े खर्चे होते हैं जिनको हम एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं. क्यों? क्योंकि उन एक्सपेंडिचर से हम कुछ प्रॉपर्टी अपने बिजनेस को लाते हैं, या फिर हम अपने डेली लाइफ में भी बोले तो कुछ प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं. तो खर्चा होना और एक ऐसा खर्चा होना जो आपको बहुत समय तक, बहुत सालों तक आपको मुनाफा या बेनिफिट देता हो, तो दोनों में थोड़ा अंतर होता है. तो उसी आधार पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि द क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आई कैन से द पेमेंट आर आल्सो ऑफ टू टाइप. पेमेंट को भी अगर हम डिवाइड करें या कैटेगराइज करें तो भी दो तरह के होंगे, या तो हम कम दे रहे हैं या तो फिर ज्यादा दे रहे हैं. ओके, either we are paying less or we are paying a lump sum or a bigger amount. ठीक है, तो पेमेंट इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. व्हाट आर दोस टू टाइप ऑफ पेमेंट? मैं फिर से वही जनरल वे में ही लिखूंगा. ठीक है, क्या? या तो वो बड़ा पेमेंट है, दैट मींस लार्जर पेमेंट, और छोटा पेमेंट, दैट मींस स्मॉलर पेमेंट. देखो, अपन हमने बात कर लिया रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में. रिसिप्ट वो चीज है जो आपको एक बिजनेस एंटरप्राइज में मिलता है. पेमेंट का मतलब क्या होता है? जो आप एक बिजनेस एंटरप्राइज में देते हो. अब ये लेना और देना तो हो गया, पर अब अकाउंटिंग से इसका क्या वास्ता है वो हम डिस्कस कर रहे थे. क्या? कि रिसिप्ट या तो बड़ा रिसिप्ट होता है या तो छोटा रिसिप्ट. पेमेंट भी या तो बड़ा पेमेंट होता है या तो छोटा पेमेंट. नाउ ये जो पेमेंट और रिसिप्ट के जो दो तीन प्रकार हैं, दो चार प्रकार हैं, इनको हम अकाउंटिंग में कुछ नाम देते हैं. ठीक है, तो पहले हमने रिसिप्ट को क्लासिफाई किया था, तो हम पहले उसको नाम देंगे फिर इसको नाम देंगे. एक्चुअली क्या होता है ना कि बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो कभी बड़े पैमाने पे होते हैं, कभी छोटे पैमाने पे. तो उनको दो नाम दिया गया था. आपको शायद याद होगा कि हमें एक्सपेंडिचर में भी वही पढ़े थे. छोटा खर्चा, बड़ा खर्चा, कम टाइम बेनिफिट, ज्यादा टाइम बेनिफिट. ठीक है, ज्यादा टाइम हमको मुनाफा देगा, कम टाइम मुनाफा देगा. तो रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, फ्रीक्वेंट, नॉन फ्रीक्वेंट, ऐसी चीजें हमने डिस्कस किए थे. तो आप बस वही सेम चीज, सेम आधार पे इसको हम लेके चलेंगे. उसी को आप सोचो. तो बिजनेस के ये भी एक ट्रांजैक्शन हुए, एक रिसीव करना या फिर पेमेंट करना, वो तो बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ. अब बड़ा हुआ तो क्या होगा, छोटा हुआ तो क्या होगा. ठीक है, ये नेचर को हमने एक्सपेंडिचर में डिस्कस किया था. तो सिमिलरली इट इज वेरी इजी. ये बहुत आसान है डिसाइड करना कि लार्जर रिसिप्ट और स्मॉलर रिसिप्ट को क्या बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? स्मॉलर रिसिप्ट क्या होता है? वहां पे छोटा खर्चा क्या था? रेवेन्यू नेचर था. बड़ा खर्चा क्या था? कैपिटल नेचर था. तो यहां पे हम यही सोच के चलेंगे कि स्मॉलर रिसिप्ट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर and the larger receipts are of capital in nature. Same goes with the payments also. That means the smaller payments are of revenue in nature, larger payments are of capital in nature. तो इन receipts जो है smaller larger receipts को क्या बोलेंगे? तो smaller receipts can be called as revenue receipts. क्या बोलेंगे हम उसको? revenue receipts. और ये जो आपके larger receipts है इसको हम क्या बोलेंगे? capital
रिसिप्ट। समझ आई बात? क्योंकि हमने छोटे और बड़े या फिर जो क्वांटिटी होते हैं खर्चों के, उनको हमने एक बेसिस पे डिवाइड किया था, जो कि आया था हमारा रेवेन्यू और कैपिटल। सेम गोज विद द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, दैट मींस डिफरेंट टाइप ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो जो छोटा खर्चा हुआ या छोटा रिसिप्ट हुआ उसको हम रेवेन्यू के नेचर बोलेंगे, जो कि बड़ा खर्चा हो रहा था या फिर जो बड़ा रिसिप्ट है उसको हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे। तो इसको हम थोड़ा इंडिकेशन के लिए ऐसे बॉक्स में रख देते हैं ताकि हमें कंपैरिजन में आसानी हो। ठीक है, इसलिए तो हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब देखो पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स में स्मॉलर पेमेंट्स किसको बोला गया था? रेवेन्यू नेचर को। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या पेमेंट बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट्स। क्या बोलेंगे हम इसको? रेवेन्यू पेमेंट्स। सेम गोज विद द लार्जर पेमेंट आल्सो। तो लार्जर पेमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल पेमेंट्स। क्या बोलेंगे हम उसको? कैपिटल पेमेंट्स। आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर से एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा, क्लासेस को देखा होगा जो कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, तो ये चीज आप अच्छे से समझ पाओगे। ये जो कंप्लीट पेमेंट है ना, इसको हम बहुत ही विस्तार से ब्रीफ से डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ब्रीफ एंड इन डिटेल हैविंग सेपरेट एग्जांपल्स रिगार्डिंग दी पेमेंट्स। देखो ये जो छोटा पेमेंट है इसको मैंने क्या बोला? रेवेन्यू पेमेंट। ये जो बड़ा पेमेंट है उसको मैंने क्या बोला? कैपिटल पेमेंट। अब एक बात बताओ, क्या मैं रेवेन्यू पेमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं कि नहीं? बोल सकता हूं ना। पेमेंट मतलब खर्चा ही तो होता है, तो पेमेंट को क्या मैं एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकता? अब आप ये सोचोगे कि एक्सपेंसेस क्या है। देखो मैंने आपको बोला था कि जब हम एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करते हैं तब एक्सपेंसेस वर्ड आता नहीं है, तब क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जब आप एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई नहीं करते हो तब एक्सपेंसेस अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है। एक्सपेंसेस छोटा खर्चा है, एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा है। पर अभी हम क्लासिफाई कर रहे हैं पेमेंट को, तो पेमेंट को एक एक्सपेंडिचर लेके चलते हैं, तो रेवेन्यू पेमेंट क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे जो कि बेसिकली करंट एसेट्स पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो तो वो भी एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेंट पे कर रहे हो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैरेजेस पे कर रहे हो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, गुड्स खरीद रहे हो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि मैंने करंट एसेट की बात की थी। अब हम चलते हैं कैपिटल पेमेंट की ओर। तो क्या मैं कैपिटल पेमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकता हूं? बिल्कुल। तो मेरे कैपिटल पेमेंट क्या हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताया था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? आपका वो एक्सपेंडिचर जो आपके एसेट्स पे खर्चा होता है। किस पे खर्चा होता है? एसेट्स पे। कौन से एसेट्स पे? फिक्स्ड एसेट्स पे। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत पे? जो कि आप खरीदते हो, मशीन्स, ठीक है, या फिर बिल्डिंग, जो कि बड़े खर्चे होते हैं, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। तो ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो टू माय earlier video where I have discussed the detail of payments or the expenditures, that how expenditures are divided into certain types with explanations and also with different type of examples। तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। मैंने और एक वीडियो भी बनाया था आपको बताने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, so you can also watch it, that what is revenue expenditure and how many types of revenue expenditure are there। तो ये होगी बात पेमेंट की, जो कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट्स की बात अब खत्म हो गई। अब हम आते हैं रिसिप्ट्स की ओर। स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द रिसिप्ट पार्ट, एक पॉइंट नोटिस किया आपने पेमेंट्स में? Have you noticed anything unique or something like different in these payments? ये देखो, जो पेमेंट्स हो रहे हैं, जो कि रेवेन्यू पेमेंट है, ये कैपिटल पेमेंट है, देखो वो किसी एसेट्स पे इन्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? या तो ये छोटे एसेट्स या फिर करंट एसेट्स में इन्वॉल्व हो रहा है, ये फिक्स एसेट्स में इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने कैसे करंट एसेट्स होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करंट एसेट इन्वॉल्व होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर से फिक्स एसेट इन्वॉल्व होता है। तो अब एक बात बताओ, अकाउंटिंग में या बिजनेस एंटरप्राइज में एसेट्स का ऑपोजिट क्या होता है? क्या होता है एसेट्स का ऑपोजिट? एक प्रॉपर्टी का ऑपोजिट क्या होगा? उधार, क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर देखो पेमेंट्स का ऑपोजिट क्या होता है? रिसिप्ट्स। और अगर पेमेंट्स एसेट्स पे होते हैं तो रिसिप्ट्स
कैन बी रिलेटेड टू लायबिलिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिसिप्ट्स में एसेट्स नहीं आएंगे, मैं ये बोल रहा हूं कि रिसिप्ट्स कैन बी रिलेटेड टू लायबिलिटी, है कि नहीं। और ये भी कैसे आपको लायबिलिटी से रिलेटेड है वो भी मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर पेमेंट्स एसेट्स को इन्वॉल्व करते हैं और एसेट्स का ऑपोजिट है लायबिलिटी और पेमेंट्स का ऑपोजिट है रिसिप्ट, तो ऑब्वियसली रिसिप्ट विल बी रिलेटिंग टू सम लायबिलिटीज, ठीक है। और एसेट्स और लायबिलिटीज के कितने टाइप्स है वो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इतना तो पता चल गया कि पेमेंट्स किसी भी तरह के एसेट्स को रिलेट करते हैं और रिसिप्ट किसी भी तरह के लायबिलिटीज को रिलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये लायबिलिटीज कैसे हुए। अगर आपको स्मॉलर रिसिप्ट मिल रहा है जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट है तो इसको हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। लायबिलिटी क्या होता है? एन अमाउंट ओड बाय योर बिजनेस फ्रॉम एन आउटसाइडर, मतलब जो कि आपको रिटर्न में चुकाना पड़ता है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं ना। पर जो इनकम होता है उसको तो आपको चुकाना नहीं पड़ता, तो वो है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, इसका और कोई नाम नहीं है, आप इसको रेवेन्यू इनकम नहीं लिख सकते बिकॉज रेवेन्यू और इनकम समहाउ सिमिलर, तो इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही बोलेंगे, ठीक है। सो रिसिप्ट्स बेसिकली रिलेट टू लायबिलिटीज बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर नॉट लायबिलिटीज। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके बिजनेस के उन इनकम्स को बताते हैं जो कि या तो डायरेक्ट इनकम है या तो इनडायरेक्ट इनकम है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले से ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम का वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो मैंने क्या बोला? रेवेन्यू रिसिप्ट आपके बिजनेस के इनकम को बताता है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो या इनडायरेक्ट इनकम हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट आर नथिंग बट कॉल्ड एज द इनकम्स। अब इनकम तो बहुत तरह के होते हैं, उसमें आता है आपका सेल्स जो कि आपका डायरेक्ट इनकम है, उसमें आता है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, जो कि आपका इनडायरेक्ट इनकम है। फिर आता है आपके डिविडेंड्स, ओके, कमीशंस, ठीक है। तो ये सारे होते हैं आपके रेवेन्यू रिसिप्ट। कहने का मतलब है बिजनेस के जो छोटे छोटे रिसिप्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड दोज रेवेन्यू रिसिप्ट आर नथिंग बट द इनकम्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इधर डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। ये सारे इनकम जो होते हैं वो होते हैं आपके रेवेन्यू रिसिप्ट। तो समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं कैपिटल रिसिप्ट की ओर। अब देखो आपको कमीशन मिला 500 रुपए का, तो उसको आप क्या बोलोगे? लायबिलिटी बोलोगे या इनकम बोलोगे? इनकम बोलोगे, वो लायबिलिटी नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे वो छोटा अमाउंट मिल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे उसको रिटर्न पे नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको और एक भी क्या बोलते हैं आधार बता दिया, आपको बेस बता दिया, क्या कि अगर आपको कुछ मिल रहा है और रिटर्न करना ना पड़े तो वो आपका इनकम है, और अगर आपको कुछ मिल रहा है और उसको अगर आपको रिटर्न करना पड़े टू दी सेकंड पार्टी टू whom you have received, that means it indicates purely towards liabilities, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपको कुछ मिल रहा है और आपको चुकाना पड़े तो वो लायबिलिटी है, अगर आपको कुछ मिल रहा है आपको चुकाना ना पड़े तो वो इनकम है। और बेसिकली लायबिलिटीज बड़े अमाउंट ही होते हैं बिजनेस में। ऐसे तो नहीं होता ना कि बिजनेस एंटरप्राइज में आपको कोई बोलेगा कि मुझे 500 रुपए दे, मैं कल आपको दे दूंगा। ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में होते हैं। एंड मैंडेट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट ए लार्जर स्केल सो दैट वी कैन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई। अब आप एक पान के दुकान पे या एक क्या बोलते हैं छोटे से बेकरी पे जाओगे तो वहां पे इतने सारे बड़े खर्च होते नहीं है, इतने बड़े रिसिप्ट होते नहीं है। तो जिसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिडिल स्केल या फिर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स को लायबिलिटीज हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है, बट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर नॉट लायबिलिटीज, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट छोटे अमाउंट का है तो वो इनकम है, बट कैपिटल रिसिप्ट जो है वो बड़ा रिसिप्ट है, क्योंकि हमने देखा था जो कि छोटा अमाउंट है वो रेवेन्यू है, चाहे वो खर्चा हो या रिसिप्ट, और जो बड़ा अमाउंट होता है वो कैपिटल होता है, खर्चा हो या रिसिप्ट, ठीक है, पेमेंट हो या रिसिप्ट। बड़ा अमाउंट कैपिटल, पेमेंट हो या रिसिप्ट, छोटा अमाउंट हो तो रेवेन्यू। तो कैपिटल रिसिप्ट से क्या होता है? लायबिलिटीज आती है। और आपको मैं और आसानी से बताता हूं, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पे आपका लार्जर पेमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो बड़ा खर्चा करने से क्या आता है? एसेट आता है। कौन सा एसेट आता है? फिक्स एसेट। उसी तरह से कैपिटल रिसिप्ट में लायबिलिटी आती है। कौन सी लायबिलिटी आएगी? जस्ट इसका ऑपोजिट, फिक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट से क्या लायबिलिटी आता है? फिक्स लायबिलिटीज। तो इन फिक्स लायबिलिटीज का एग्जांपल क्या है ये तो हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, पर अभी आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। फिक्स लायबिलिटीज में होता है आपका कैपिटल ले सकते हो आप, जो कि बिजनेस में ओनर का कैपिटल होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स आर द फिक्स लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस।
एंड डिवेंचर्स, एक जो बड़ी कंपनी होती है जो डिवेंचर इशू करती है उसको भी हम फिक्स लायबिलिटी बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और डिवेंचर्स, ये सारे होते हैं आपके फिक्स लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? Entire business transaction or all the business economic activities can be described or explained in just two terms, that is receipt and payment. तो again receipt और payment को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? बड़ा अमाउंट हुआ तो कैपिटल, छोटा अमाउंट हुआ तो पेमेंट, रेवेन्यू। तो पेमेंट कितने तरह के हुए? जो लार्जर पेमेंट है वो कैपिटल पेमेंट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसके एग्जांपल भी है फिक्स एसेट के। और पेमेंट अगर छोटा हुआ तो वो स्मॉलर पेमेंट है, मतलब रेवेन्यू पेमेंट है। रेवेन्यू पेमेंट को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि बेसिकली छोटे मोटे खर्चे होते हैं, दैट मींस योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कमिंग टू द रिसीट्स, रिसीट्स आर टू टाइप्स, लार्जर रिसीट एंड स्मॉलर रिसीट। जो छोटे रिसीट होते हैं उनको आप बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। द रेवेन्यू रिसीट इंडिकेट्स द इनकम्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट मे बी ईदर डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, जिसका मैंने एग्जांपल भी बताया है आपको, वो पिछले वीडियो में भी है, आप देख सकते हो। Coming to larger receipt or the capital receipt, it purely indicates to the liabilities of the business, as the capital expenditure involves fixed asset of the business. Coming as the opposite, the capital receipt indicates to the fixed liabilities of the business. Those fixed liabilities of the business are long-term loans, debentures, unsecured loans, जो कि बड़े-बड़े लोन्स होते हैं, आप बैंक से लेते हो, किसी कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, ठीक है, तो वो सारे होते हैं आपके फिक्स लायबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया रिसीट एंड पेमेंट का पूरा डिटेल। अब हमको देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, देखो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए? टू फैक्टर्स, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंसेस, या फिर रिसीट एंड पेमेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, यहाँ पे आपका रेवेन्यू पेमेंट है। अब बताओ यहाँ पे जो है इसमें से हम क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे हम क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? क्या मैं रेवेन्यू पेमेंट को कैपिटल रिसिप्ट से कंपेयर कर सकता हूं? नो, बिकॉज दे आर ऑफ नॉट द सेम नेचर। क्या मैं रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल पेमेंट से कंपेयर कर सकता हूं? अगेन नो, बिकॉज दे आर ऑफ नॉट सेम नेचर, दे आर डिफरेंट। दिस टू एंड दिस टू आर डिफरेंट। वी कैन कंपेयर ओनली with the same nature, that means revenue receipts can be compared with the revenue payments, capital receipts can be compared with the capital payments। समझ में आया? तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो कंपेयर करने से यही तो आता है ना कि प्रॉफिट और लॉस, है कि नहीं? कंपेयर करने से प्रॉफिट और लॉस ही आता है। ठीक है, तो अगेन क्या प्रॉफिट और लॉस भी डिवाइड होते होंगे? दैट मींस कैपिटल रेवेन्यू में एग्जैक्टली वही होता है। तो हम कंपेयर करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स को कैपिटल पेमेंट से। अगर आपका कैपिटल रिसिप्ट बड़ा हुआ कैपिटल पेमेंट से, ठीक है, अगर आपका कैपिटल रिसिप्ट बड़ा हुआ कैपिटल पेमेंट से, बट वो किसी एक एसेट या लायबिलिटी को ही रिलेट होना चाहिए। मतलब आप कोई एसेट खरीद रहे हो तो आपका कैपिटल पेमेंट है, और अगर उसको आप अधिक दाम में बेच देते हो तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हुआ। ऐसा नहीं कि एक लायबिलिटी को आप एसेट से कंपेयर करोगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आप खर्चा करते हो एसेट्स के ऊपर वो कैपिटल पेमेंट होता है। और सोचो कि आपने एक मशीन को खरीदा 10,000 में, वो कैपिटल पेमेंट है, और कुछ समय बाद उसको यूज करने के बाद आप उसको बेच देते हो 12,000 में, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना? 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी तरह से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। दैट मींस जो 10,000 मैंने खर्चा किया वो मेरा कैपिटल पेमेंट है, और जो 12,000 मुझे मिला वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट है। यहाँ पे मैं लोन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जाम्पल सेम होना चाहिए या फिर ट्रांजेक्शन सेम चीजों को रिलेट होना चाहिए। तो कैपिटल रिसिप्ट अगर कैपिटल पेमेंट से ज्यादा हुआ तो आंसर होगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, क्या होगा आंसर हमारा? कैपिटल प्रॉफिट। सेम अगर कैपिटल रिसिप्ट कम हुआ कैपिटल पेमेंट से तो क्या होगा? कैपिटल लॉस होगा कि नहीं? अब इसी को पलट लो आप कि आपने खरीदा 12,000 में और बेचा उसको 10,000 में, तो आपने खरीदा 12,000 मतलब कैपिटल पेमेंट हुआ, बेचा उसको 10,000 मतलब कैपिटल रिसिप्ट हुआ। तो कैपिटल रिसिप्ट आपका घट गया कि नहीं कैपिटल पेमेंट से? तो क्या हुआ? कैपिटल लॉस। ठीक है, सेम गोज विद द रेवेन्यू ऑल्सो। अगर आपका रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है रेवेन्यू पेमेंट से तो क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? आपको प्रॉफिट होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रेवेन्यू प्रॉफिट। ये आप आसानी से समझ सकते हो।
कैसे? इसका एग्जांपल बहुत आसान है। रेवेन्यू हमेशा गुड्स रिलेटेड होता है, जो कि बिजनेस में हम गुड्स को खरीदने बेचने में यूज करते हैं। तो सोचो कि मैंने परचेज किया टोटल 50,000 का, और उसी साल मैंने टोटल सेल्स किया उसी चीजों का जो कि आता है 75,000। तो बताओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस? मैंने 50,000 खर्चा किया और 75,000 मैंने अर्न किया, तो डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। उस प्रॉफिट को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है? 25,000 का। ठीक है, 25,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि गुड्स को होता है। रेवेन्यू इज रिलेटेड टू दी गुड्स ऑफ दी बिजनेस, या फिर छोटे मोटे खर्चे या छोटे मोटे इनकम। सेम अगर रेवेन्यू रिसीव्स कम है रेवेन्यू पेमेंट से, तो क्या होगा? रेवेन्यू लॉस। क्या हो जाएगा वो? रेवेन्यू लॉस। अब इसी को आप उल्टा कर लो, या फिर हम और एक एग्जांपल ले लेते। सोचो कि हमारा टोटल परचेज है 60,000 और उसी साल मैंने सेल किया कितना? 45,000 का। तो डिफरेंस क्या आता है? 15,000। तो ये 15,000 क्या है मेरा? लॉस। ठीक है, क्या है लॉस? रेवेन्यू लॉस। ठीक है, तो कैपिटल रिसीव्ड अगर कैपिटल पेमेंट से ज्यादा हुआ रिलेटेड टू दी सेम एसेट और लायबिलिटी, देन इट इज कैपिटल प्रॉफिट। अगर कैपिटल रिसीव्ड कैपिटल पेमेंट से कम हुआ तो कैपिटल लॉस। सेम गोज विद द रेवेन्यू आल्सो, एज रेवेन्यूज आर रिलेटेड विद द गुड्स परचेज एंड सेल्स, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। दैट मींस अगर रेवेन्यू रिसीव्ड रेवेन्यू पेमेंट से ज्यादा हुआ तो रेवेन्यू प्रॉफिट, और अगर रेवेन्यू रिसीव्ड रेवेन्यू पेमेंट से कम हुआ तो रेवेन्यू लॉस। ठीक है, अब ये तो प्रॉफिट और लॉस हो गया। जो लायबिलिटीज और एसेट्स है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।